वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी पर। आई एम योर एजुकेटर शुभम पराशर। तो टिल नाउ इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग फ्रेंड्स, वी आर बेसिकली डिस्कस द पैरेललोग्राम लॉ. It is a law for how many forces? Only two forces. Two forces if find out the resultant, then which law is it is a parallelogram law. पैरेललोग्राम लॉ वैलिड किसके लिए है? दो फोर्सेस के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे पहले हमने क्या बातें की थी? हमने देखे थे फोर्स सिस्टम्स. But there are basically two types of force systems. One is coplanar concurrent force system, which we are discussing yesterday. Okay. Now उससे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था बेसिकली दो तरह के फोर्स सिस्टम होते हैं, एक तो कोप्लेनर होते हैं, एक नॉन कोप्लेनर होते हैं. उनके चार चार केस हमने कल देखे थे, ठीक है फ्रेंड्स। हमने ये सब कुछ कल बात कर ली थी. तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हमारी क्लास शुरू करते हैं विद एग्जांपल के ऊपर, जो कि किसके ऊपर बेस किया? पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस किया. ओके, चलिए इसको समझते हैं, हम कोशिश करते हैं करने की. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज resultant of two forces acting at perpendicular is 10 kilonewton. What two forces which is perpendicular means like that condition. One force is this, second force is in upward, and their resultant is what? This is the resultant is what? 10 kilonewton. Okay, draw first condition here. This is one force, this is second force. Here F1, here what? F2, second force. They are both are what? Perpendicular to each other. Both are what? Perpendicular to each other. The angle between the two is 90 degree. And what is the resultant? The resultant is this. This is what? This is the resultant. What is value of this resultant? They said 10 kilonewton. 10 kilonewton. Okay, not an issue. Now what's the second condition? If they act at 60 degree, if their angle between the two forces are 60 degree, then the resultant is 5 root 6. Then resultant is 5 root 6. Means what? This is the force 1, this is the force 2, F1, F2, and the angle between them is 60 degree. Then what is the resultant? The resultant is what? 5 root 6. How we draw the resultant? Like that, the perpendicular line. According to parallelogram, we construct a parallelogram. If you know what, not watching my yesterday class, please watch that. Then you are able to understand clearly what is parallelogram. It is what? 506 kilonewton. This is a given condition for us. The condition is like that. Now what can we do? Just apply the parallelogram law. Now in that condition, we know what is resultant R. If they both are perpendicular, we apply the Pythagoras theorem. F1 square plus F2 square is equal to what? R square. This is what is getting here. Okay, now what is the basic formula? F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 into cos of angle between the two forces. Angle between the two forces, it is 90 degree, and we can go for under root. This is our resultant for this condition. Okay, now what is value of cos 90? What is value of cos 90? It is 0. Now what we are getting? This under root we can इधर इस अंडर रूट को फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 here. Now 1 F1 square plus F2 square. This is what? Equation first. This is what? Equation first. Now come here. What is the relation here now? R is what? 5 root 6. 5 root 6 का we do whole square is equal to what? F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 into cos of 60 degree. This is what? What is value of cos 60? It is 1 by 2. So what we are getting here is, this is 5 square 25, 6 cos square 6, 25 into 6. How much? 25 into 6. Or we can say that it is 5 into 6 ka whole square is equal to what? What we are getting here? F1 square plus F2 square plus F1 F2. 2 by 1 by 2 cancel out. Cos 60 is 1 by 2. Now but this is our second condition. Now from first condition, we know the value of what? F1 square plus F2 square. That is 100. Just put the value here. What we get? Just put the value here. What we get? F1 F2 is what? F1 F2 is what? 5 under root 6 ka whole square minus 100. This is our second condition. How after solving, what is the value?
how much value you are getting after solving? After solving, we get f1 f2 is equal to 50. This is our equation third. This is our equation third. Now we have to find out the value of f1 and f2 both. How to approach now? Like that, the approach is like that. मैं यहां से मिटा देता हूं और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर? व्हाट इज दिस? यू नो व्हाट? बाय यूजिंग मैथमेटिक्स आई कैन सॉल्व इट. It is f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 or not? It is what? 2f1 f2. Actually here what is cos 0, because angle between the two is 0. Actual formula is there is also cos, but it is 0, so cos 0 is 1. So what we are getting from here? Value of f1 plus f2 is what? But this is what? 100. This is what? 50 into 2, 100 plus 100 का what? Ka what? Square the under root. This is what? 200 under root of 200. This is our equation 4. Now f1 minus f2 ka whole square is what? Same f1 square plus f2 square minus 2f1 f2. We know the value of this. We know the value of this. Then what is value of f1 minus f2? Value of this is what? 100 minus value of this is what? 100. It is 0. From here what we can find? That f1 is equal to f2. f1 is equal to f2. This is our equation 5. Equation 5. Now what we will do? Put this value into this. Put this value into this. What we are getting? If f1 is equal to f2, then 2f1 is equal to what? Under root 200. Then f1 is what? Under root of 200 by 2. What is value of f2? It is same under root of 200 by 2. So we approach this question like that by using simple mathematics. This is only just a mathematics. We also do this problem by graphical method, but for graphical method we need more measurements. We need proper measurements, proper scales. So for analytic purpose we do like this. It is a very easy question. Many times asked in GATE or SSC JISC prelims. Many times they ask the conditions or like that. This is one condition. If another condition is according to question, then we can solve easily by using parallelogram law. Okay. Now we understand clearly what is parallelogram law. Now what we can do? Try to move forward. So there is a scientist known which gives the parallelogram law and tells that I find the resultant by my method, that is parallelogram law. Now another scientist come. What he said? He said, parallelogram, your method is good. I am very happy to see your method, but I have also a method. Then parallelogram said, what is the method? Then the another scientist said that I have a method which is easier than your method. Parallelogram shocked and he said, tell me your method. Then another scientist come and give method, that is what? Triangle method. What? Triangle method, or we can say triangle law. It is also for a two forces. ये भी कितने फोर्सेस के लिए है? दो ही फोर्सेस के लिए है. ओनली फॉर टू फोर्सेस. पैरेललोग्राम भी दो फोर्सेस के लिए था. ये भी कितने फोर्सेस के लिए है? दो ही फोर्सेस के लिए है. अब ये इसमें होता क्या भाई? सपोज दिस इज अ बॉडी. ये क्या है? एक बॉडी है. बोलता है पैरेललोग्राम तू है ना इसके ऊपर अपनी फोर्सेस लगा दे जैसे तू लगाता है. पैरेललोग्राम बोलता भाई लगा देता हूं. बोलता ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. ये मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लेट अस से F1. एक फोर्स मैंने लगाया इधर, लेट अस से F2. कहना मैंने अपनी फोर्सेस लगा दिया. बता कैसे सोल्व करेगा मेरे मेथड के अलावा? तो ट्रायंगल में बोलता है, ट्रायंगल लॉ बोलता है, कहता कुछ भी नहीं करना. बोलता है कुछ भी नहीं करना. कह रहा जो ये फोर्स है ना, इसको उठा के
सेम डायरेक्शन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड में इसके हेड के ऊपर फिक्स कर दो। बोलता है कुछ भी नहीं करना, इसको उठा के सर इसके हेड के ऊपर सेम फिक्स कर दो, मीन्स इसको उठा के यहां से और इधर ले आओ ऐसे। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम मीन्स if the angle between at this position is theta, then angle also at this position is what? Theta. Same position. What? Same position. And magnitude represented by this measurement. What is this? This is a magnitude. This dimension representing magnitude. Same dimension, same magnitude and same direction. Then parallelograms of how this happen. Actually, we cannot say like that. We put force here and stay. We take from force here and stay here. It is not principle of transmissibility. We already studied the principle of transmissibility. But for the purpose of finding the resultant, we have take like this. हमने ऐसा ले लिया, लेकिन ये क्या होगा एक्चुअल में, इसी बॉडी के ऊपर तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते थे, उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर इसको उठाकर यहाँ पे नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए ट्रायंगल ने ऐसा कर दिया। अब क्या बोलता है, कहता कुछ भी नहीं करना, इस ए पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना बी, इससे डायरेक्टली मिला दो। क्या करो, डायरेक्टली मिला दो। वो आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। तो इससे इजी मेथड है नहीं। इसलिए क्या बोला, कह रहा भाई एक फोर्स है, ठीक है, उसके हेड के ऊपर जो दूसरी फोर्स है ना वो लगा दो, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की। तो उन दोनों फोर्स को मीट कर दो इनिशियल पॉइंट से, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, रिजल्टेंट। क्या मिल जाएगा आप लोगों को, रिजल्टेंट मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, ये तो इजी रहा है उससे मेथड। तो कह रहा बिल्कुल रहा है सर, इजी रहा है। तो अब हम आगे क्या बात करें फ्रेंड्स, हमको पता चल गया कि ट्रायंगल लॉ होता क्या है। तो बेसिकली ट्रायंगल लॉ क्या बनाता है, इट इज जस्ट ए वेक्टर ज्योमेट्री। इट इज जस्ट ए वेक्टर ज्योमेट्री। ओके, दिस इज व्हाट हेड, this part is what tail. So we meet one head with tail and draw the another vector here, another force here, and we get resultant. What we get, resultant. ये भी किसके लिए है, टू फोर्सेस के लिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, फोर्सेस की वैल्यू ये क्या होगी, F2 फोर्स होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि ये एंगल थीटा है, देन व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज पाई माइनस थीटा। दिस इज व्हाट, पाई माइनस थीटा। ओके, ये क्या हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। और ये एंगल क्या होता है, मेरे को पता रिजल्टेंट का फर्स्ट उससे एंगल, दिस इज अल्फा। देन व्हाट इज दिस, ये कैसे निकालेंगे भाई हम, अरे भाई टोटल एंगल कितने होते हैं, 180। देन वी कैन सब्सट्रैक्ट 180 माइनस व्हाट, 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा। व्हाट वी आर गेटिंग, 180 माइनस 180 माइनस प्लस थीटा, देन व्हाट, minus alpha. Okay, 180 cancel out. What is the value of this angle? Theta minus alpha. This is what, theta minus alpha. Now how we can find out the forces? Just apply the sine rule. क्या बोलता है ट्रायंगल, कुछ नहीं करना भाई, साइन रूल लगा दो। साइन रूल क्या होता है भाई, साइन रूल क्या होता है, F1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, यह है F1। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस इज F1। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस एंगल। कौन सा है, दिस एंगल। व्हाट, साइन थीटा माइनस अल्फा। क्या है, साइन थीटा माइनस अल्फा। व्हाट इज F2, F2 के अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा। यही होता है ना भाई साइन रूल। रिजल्टेंट के अपोजिट एंगल कौन सा है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस थीटा। दिस इज व्हाट, दिस इज वी अप्लाई द साइन रूल हियर एंड solve the value of F1, F2, R and R. If in question some values are given, like if angles are given, okay, we have F1, we can find out the F2. If we have only F1, then we can also find out the resultant. So this is basically all about the analysis of triangle method or triangle law. Triangle law ने हमें क्या बताया, कह रहा भाई साइन रूल लगा दो और क्या कर दो, आंसर पा लो। अप्लाई
साइन रूल। दिस इज साइन रूल। साइन रूल तो आपको पता होगा क्या होता है, अभी हमने लगा के दिखाया कि जो अपना फोर्स है उसके अपोजिट जो एंगल दिख रहा है हमें सामने को, दिस फोर्स इज इसके अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है, यही तो एंगल है। इस फोर्स के अपोजिट ये एंगल है, इस फोर्स के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल है। तो हमने वही लगा दिया साइन करके, दिस इज साइन रूल। तो हमें क्या पता लगा, हमने देख लिया भाई ट्रायंगल लॉ क्या होता है। अब भाई साइंटिस्ट की कभी उत्पत्ति खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक साइंटिस्ट आते रहते हैं। तो अब एक नया साइंटिस्ट आ गया। कौन आ गया, नया साइंटिस्ट आ गया। वो बोलता है कि मेरा भी एक मेथड है भाई। हमने कहा भाई जब ट्रायंगल आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, तू क्यों पीछे हट रहा है, तू भी आ जा, तू भी बता दे क्या बताना चाहता है। वो कहता मेरा मेथड है, तुम्हारा जो मेथड है ना, तुम्हारे मेथड की लिमिटेशंस है। हमने कहा कि क्या लिमिटेशन है, बोलता तुम्हारा मेथड है ना सिर्फ दो फोर्सेस पे ही एप्लीकेबल है। मतलब कहता अगर तुम्हें एक साथ तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़े तो तुम निकाल नहीं सकते, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। मैंने कहा ऐसा क्या है भाई, ऐसे कैसे निकाल देगा तू, क्योंकि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में अगर हमें तीन फोर्सेस दे रखी है उनका रिजल्टेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो का निकालना पड़ेगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ हमें थर्ड लेके उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इट इज ए लेंथी प्रोसीजर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस वाया ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। So our next law is what? Third law is what? Polygon law or polygon method. It is for what? It is what for? Many forces. ये क्या हो सकता है, दो या उससे ज्यादा, तीन चार पांच, कितने भी फोर्सेस के लिए हो सकता है। तो ये क्या बोलता है भाई पैरेललोग्राम, सॉरी पॉलीगन लॉ, ये बोलता है कि बॉडी कहाँ है। मैंने कहा ये मेरी बॉडी कहीं जाती नहीं अपनी। बोलते इसके ऊपर फोर्सेस कितनी लग रही है, लगाओ। मैंने कहा लगा देता हूं, दिस इज अ फोर्स F1 से, ओके। कितने इसकी डायरेक्शन क्या से थीटा एंगल पे है, ये थीटा 1 बोल देते हैं हम, ठीक है। मैंने कहा उसके बाद कहता दिस इज अ फोर्स F2, कहता और मैंने कहा दिस इज अ फोर्स F3, कहता बस। मैंने कहा एक और फोर्सेस F4। मैंने कहा क्या चार फोर्सेस लगा दी और क्या किया, इसके एंगल्स इनकी डायरेक्शंस भी दे दी। क्या डायरेक्शन दे दी, मैंने बोल दिया ये एंगल कितना है, θ2 है, और ये एंगल कितना है, θ3 है, और ये एंगल कितना है, θ4 है। ये एक बॉडी के ऊपर चार फोर्सेस लग रही है। तो पॉलीगन बोलता है कि इसको कैसे सोल्व करोगे तुम। हमने कहा हमें तो अभी तक यही पता है कि मैं क्या करूंगा, पहले इसको और इसको फोर्स सोल्व करूंगा, इसका एक रिजल्टेंट लूंगा, ठीक है। उस रिजल्टेंट से मैं इस फोर्स के साथ बैलेंस करूंगा, इसके उसका रिजल्टेंट लूंगा, और फिर आखिरी के साथ करूंगा। तो कहते हैं यार इतना सब करने की जरूरत क्या है, इतना सब करने की जरूरत क्या है जब मैं हूं, मेरा नाम है पॉलीगन। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम है, बता फिर क्या करे। तो पॉलीगन बोलता है भाई तुम क्या करो, एक स्केल ले लो। मैंने कहा ले लिया। कह रहा प्रकार ले लो, कंपास ले लो, स्केल ले लो एंड कंपास ले लो। मैंने कहा तू मतलब करना क्या चाहता, कह रहा भाई मैं हूं ग्राफिकल, मैं हूं बंदा कौन सा, ग्राफिकल। तुम करते हो थ्योरेटिकल रिलेशंस में, मैं हूं ग्राफिकल। तो ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है। इट इज व्हाट, ग्राफिकल मेथड। पॉलीगन मेथड इज व्हाट, ग्राफिकल मेथड। तो क्या होगा इसमें, कहता कुछ नहीं करना तुम लोगों को। बच्चे कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बोलता है आपने एक फोर्स उठाओ, उसकी डायरेक्शन रखो सेम। मैंने कहा अच्छा, मैंने एक फोर्स उठा ली, दिस इज माई फोर्स F1, और उसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल से θ1। मैंने कहा भाई रख दिया मैंने। कह रहा दूसरी फोर्स उठाओ। मैंने कहा मैं दूसरी उठा लेता हूं। मैंने उठा ली ये वाली फोर्स, लेट्स सपोज मैंने उठा ली ये वाली फोर्स, दिस इज व्हाट आवर सेकंड फोर्स। कहता अब इसको कहां पे मिलाओ, उसके हेड से मिला दो और सेम डायरेक्शन रख दो। मैंने कहा ऐसे कैसे, कह रहा रख के देखो। मैंने कहा ओके। मैंने कहा मैंने इसको इससे मिला दिया, दिस इज व्हाट आवर F2। बोलते सेम मैग्नीट्यूड रखना है और सेम ही डायरेक्शन रखनी है। डायरेक्शन सेम कैसे रखूंगा, व्हाट हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में व्हाट एंगल इज θ4। मैंने कहा मैंने कर दिया भाई, अब क्या करूं। कहता अगर तीसरी फोर्स मिलाओ, वो इसके हेड से मिलाओ। मैंने कहा वो कैसे, कह रहा करके देखो। मैंने क्या किया, तीसरी फोर्स उठा ली, व्हाट दिस इज अवर थर्ड फोर्स, दिस इज अवर थर्ड फोर्स, या फिर थर्ड फोर्स, हाँ दिस इज अवर थर्ड फोर्स। एक्चुअली देयर इज प्रॉब्लम इन साइन कन्वेंशन, F1 F2 then this is F3 and this is our F4, ताकि there is a true representation, okay।
Yes, this is theta 3, but there is a, I said there, this is a theta 4, okay? This is force F2, then this angle is what? Theta 2. This is force F3, this is theta, this is what? Theta 4. Okay, now our sign convention is correct. Okay भाई, तो अब क्या होगा? दिस एंगल भी क्या होगा? थीटा 2. चलो अब हमने बोला कि तीसरी को भी लगा दे, मैंने कहा लगा देता हूं भाई. हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बढ़ा रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड कितना है? F3 है, F3. और किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में, बट थीटा 3. मैंने कहा लगा दिया. अब क्या करूं? कहता अब चौथी फोर्स को भी मिला ले, चौथी फोर्स को भी बना ले. मैंने कहा मैं बना लेता हूं. क्या है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है और इस डायरेक्शन में है. व्हाट? चौथी से थीटा 4 एंगल है और F4. डायरेक्शन कौन सी है? वो डायरेक्शन है. ठीक है जी. दिस इज व्हाट? F1. दिस इज व्हाट? F2. तो इस तरह से हमने बना ली. क्या तो मैंने कहा क्या करूं भाई, मैं तो फंस गया. अब कहता कुछ नहीं करना है. क्या बोलता है? यू हैव टू डू नथिंग. मैंने कहा सो. कह रहा जस्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए जस्ट मीट द लास्ट पॉइंट. इस पॉइंट को सीधा इस पॉइंट से मिला दो और ये जो बाय मेजरमेंट मैग्नीट्यूड मिलेगा ये क्या होगा? आपका रिजल्टेंट आर होगा. और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा ये आपका क्या होगा? थीटा आर होगा. ये आपकी डायरेक्शन होगी. ये आपकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी. मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है. इसमें तो हमारी क्या होगी? बहुत सारी जो हम लेंथी प्रोसीजर यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए वो सारी खत्म होगी. क्या हो गया? लेंथी प्रोसीजर ही खत्म हो गए. ये तो सीधा का सीधा ही आंसर मिलना शुरू हो गया. बट प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के साथ? इट इज ए ग्राफिकल मेथड. प्रॉपर मेजरमेंट लेनी पड़ेगी. प्रॉपर मेजरमेंट लेनी पड़ेगी. इस मेथड को हम कब यूज करते थे? जब एंशिएंट टाइम था. पुराने समय में ये मेथड बहुत अच्छा था जब किसी को कुछ पता ही नहीं था. लेकिन आज के समय में हम कहेंगे यार ये मेथड तो बकवास है. इस मेथड से क्या है? इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद हमें रिजल्टेंट मिल रहा है और वो भी ग्राफिकली. स्केल लेकर बैठे एक चीज को मेजर करो, अगर हल्की सी गलती होगी क्वेश्चन गलत हो गया. तो ये कोई मेथड कोई एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F का मैग्नीट्यूड F4 का मैग्नीट्यूड ठीक है बराबर हो जाए, उतना हो जाए कि ये ए से मिट कर जाए. इसका मैग्नीट्यूड उतना हो जाए कि ये ए से मिट कर जाए तो क्या होगा? रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? In that case, if these forces make a closed polygon, then what is the value of resultant? It is 0. भाई रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट हम किसको बोल रहे हैं? इस पॉलीगन को क्लोज करने के लिए जो हमने यूज किया वो रिजल्टेंट. ये ऑलरेडी क्लोज किया था. इट मीन्स रिजल्टेंट इज 0. रिजल्टेंट इज 0 इफ क्लोज पॉलीगन. यदि पॉलीगन ऑलरेडी क्लोज हो जाए. यदि पॉलीगन ऑलरेडी क्लोज हो जाए तो हम बोल देंगे कि इसका रिजल्टेंट क्या हो गया? 0 हो गया. ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया. ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में हो गया. अच्छा यहां से चीज देखिए आपने क्या समझ रहे हैं? यहां से इसके पास कुछ रिजल्टेंट है. इसके पास कुछ रिजल्टेंट है. उसकी क्या है? क्या है डायरेक्शन? दी. उसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है. यहां से ये. दिस इज व्हाट? आर रिजल्टेंट. And what is the angle of this? It is theta r from horizontal. This is what? Resultant. अच्छा आप मुझे ये बताओ ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया. तो ये बॉडी किसमें है? ये बॉडी क्या है? किसमें है? इक्विलिब्रियम में है? नहीं है फ्रेंड्स. अगर कोई नेट फोर्स डाउनवर्ड में लगी तो क्या करेगी ये बॉडी? इस डायरेक्शन में भागना, ट्रांसलेट करना भी शुरू कर देगी. क्या? जब यहां पर रिजल्टेंट आ गया. अगर तो रिजल्टेंट 0 होता, हमारा फोर्स सिस्टम क्या बोलता है? कोप्लेनर कंकरेंट. ये क्या है? कोप्लेनर कंकरेंट तो है. एक ही प्लेन में है, सारी फोर्स एक ही पॉइंट में मिल रही है. इट इज ए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स. देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? Forces in x direction is 0. Forces in y direction is 0. What is happening here? Net force is not 0. Means resultant force is not 0. It means ये क्या करेगा? इस तरफ ट्रांसलेट करता हुआ भाग जाएगा किसी एक्सेलरेशन a से. जब फोर्स आ गया तो उसी समय क्या आ जाएगा पिक्चर में? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन a से भाग जाएगा. तो स्टैटिक्स में बेसिकली क्वेश्चन पता किस तरह के पूछे जाते हैं? 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कौन कौन से? या तो बॉडी आपको इक्विलिब्रियम में देगा, बोलेगा फोर्सेस निकाल लो. या तो बॉडी इक्विलिब्रियम में देगा, बोलेगा फोर्सेस निकाल लो. या बोलेगा बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसको इक्विलिब्रियम में बनाओ.
क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसको इक्विलिब्रियम में बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, ये इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, कब हो सकता है फ्रेंड्स बताओ, जब जब एक इसके बिल्कुल अपोजिट एट इक्वल फोर्स से F5 लग जाए, इसके बिल्कुल इक्वल अपोजिट फोर्स F5 लग जाए। अब हम क्या बोलेंगे, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमें बोल देंगे एग्जाम में कि वो F5 फोर्स बताओ जो कि इसको इक्विलिब्रियम में कर दे, उसकी डायरेक्शन भी बताओ हॉरिजॉन्टल से। दिस इज व्हाट डायरेक्शन, इट इज व्हाट θ5, इट इज व्हाट θ5। तो दो ही तरह के स्टैटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ऑलरेडी आपको इक्विलिब्रियम में देगा, फोर्सेस पूछेगा, या फिर आपको कहेगा सिस्टम क्या है, मोशन में है और इसको इक्विलिब्रियम में बनाओ। कैसे बनाओगे, तो यही दो टाइप्स है दोस्तों क्वेश्चन के, यही दो टाइप्स है, इन्हीं तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अब क्या हो गया, ये फोर्स इस फोर्स को, रिजल्टेंट को क्या कर रही है, कंप्लीटली बैलेंस कर रही है। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस θ5। how we can find out this θ5? If you know the value of resultant, if you know the value of what, F5, then how we can find out the θ5? We cannot find out the θ5 by analytical method, इससे एनालिटिकल मेथड से। तो हम इससे हो गए थे बोर, इससे क्या हो गए थे बोर। हमें कोई ऐसा रामबाण चाहिए था, हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए था जो कि मास्टर ऑफ द ऑल मेथड्स, जो कि मास्टर ऑफ द ऑल मेथड्स। दोस्तों जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूं आपको, उससे हम मैकेनिक्स का, स्टैटिक्स का हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और मैं उसी से करूंगा। मेथड्स हमने पैरेललोग्राम भी पढ़ा, हमने ट्रायंगल भी पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा, हम एक दो मेथड और पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये हर मेथड पे एप्लीकेबल है, हर कंडीशन पे एप्लीकेबल है स्टैटिक्स की। और इस मेथड के थ्रू हम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो स्टैटिक्स की इजीली सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इजीली सोल्व कर लेंगे। तो our next method is what? Analytical method। क्या है, एनालिटिकल मेथड। फोर्थ मेथड इज व्हाट, एनालिटिकल मेथड फॉर मैनी फोर्सेस। ये भी किसके लिए है, मैनी फोर्सेस के लिए है। तो एनालिटिकल मेथड देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बोलता है बॉडी का है, मैंने कहा बॉडी तो हमेशा आ जाएगी, ये आगे बॉडी। कहता फोर्सेस का है, मैंने कहा इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। बोलता है कितनी फोर्सेस, मैंने कहा मैनी फोर्सेस, मैनी लगाओ। फिर हमने बोला कि एक फोर्स क्या है, F1 है यहाँ पर, दूसरी फोर्स कहाँ है, यहाँ पे F2 है, तीसरी फोर्स मैंने बोला यहाँ पे है F3, और चौथी फोर्स मैंने कहा यहाँ पे है F4। तो इसकी डायरेक्शंस बता दो मुझे। मैंने कहा बिल्कुल बता देते हैं भाई डायरेक्शंस। क्या डायरेक्शंस है, θ1 जो है वो इससे बना रहा है, θ2 जो है वो इससे बना रहा है, और θ3 वो है इससे बना रहा है, और θ4 जो है ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। हाँ वर्टिकल से भी बना सकते थे, लेकिन वर्टिकल से बनेंगे कैसे। दिस एंगल अगर हम वर्टिकल की बात करें, लेकिन बेसिकली हम जनरली हॉरिजॉन्टली लेके चलेंगे, क्योंकि फॉर आवर कन्वीनियंट, ताकि इजीली सोल्व हो जाए। हम क्या लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टली लेके चलेंगे। अब एनालिटिकल मेथड बोलता क्या है, बोलता है पॉलीगन। तूने बहुत मजे कर लिए, अब मेरी बात सुन ले। एनालिटिकल बोलता है पॉलीगन को, पॉलीगन कहता है यार वैसे तो आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं जो कि मेरे मेथड को से ऊपर कोई मेथड ले आए, पर फिर भी मैं तेरी सुन लेता हूं। तो क्या होता है दोस्तों, कभी किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो आ गया कौन, पॉलीगन का फादर, एनालिटिकल मेथड। अब ये क्या बोलता है, एनालिटिकल मेथड क्या बोलता है, एनालिटिकल मेथड बोलता है, कहता भाई ये कौन सा सिस्टम है। सबसे पहले दोस्तों हम किस सिस्टम की अब तक बात कर रहे हैं, इट इज वर्स्ट। ये क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे उनका लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है, मींस इट इज ए कंकरेंट, इट इज ए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ये कौन सा है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये वाला फोर्स सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड बोलता है क्या करो भाई, फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में ले लो और वाई डायरेक्शन में ले लो, सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में ले लो और वाई डायरेक्शन में ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें रिजल्टेंट दे दूंगा। मैंने कहा वो कैसे दे देगा तू, बोलता है ऐसा करो तुम, दिस इज योर बॉडी। मैंने कहा यस, टेक ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, लेट अस से Fx, देन टेक ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, लेट अस से Fy, लेट अस से Fy, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट। मैंने कहा हाउ, then he said just do nothing, just take resultant like that। ऐसे क्या करो, इसका रिजल्टेंट ले लो, ऐसे क्या करो, इसका रिजल्टेंट ले लो।
मैंने कहा यार ये क्या कर दिया तुमने, ये तो मुझे पता था ऑलरेडी, यार तो अप्लाई क्यों नहीं किया। ये क्या हो गया, मेरा लॉ हो गया। दिस इज पॉइंट ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये फोर्सेस को अगर हम बॉडी के ऊपर, ये फोर्सेस है, अगर इसको हम लगा के देखें तो कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, इस डायरेक्शन में क्या क्या हो जाएंगी फोर्सेस। एक तो हो जाएगा ये F1 वट कोस थीटा 1, वट F1 कोस थीटा 1 प्लस प्लस दिस इज वट F2 कोस थीटा 2, F2 कोस ऑफ थीटा 2, और क्या हो जाएगा प्लस प्लस F3 कोस थीटा 3। नाउ वट वी नो द साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वी नो द साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट, दिस इज वट पॉजिटिव साइड, दिस इज वट पॉजिटिव साइड, this is what negative side, this is what negative side, so we use the sign convention. Then what is this, this is f3 cos theta 3, but its direction is what, opposite in negative direction, so we can take it negative minus f3 cos of theta 3. And what about for f3 cos theta 4, it is also in negative side, so we take negative f4 cos of theta 4, f4 cos of theta 4. Now what about the y, y के बारे में वही बता दो, y के बारे में भी बता दो। तो y के लिए क्या करेंगे हम, इसका कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, अपवर्ड है तो पॉजिटिव f1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस, अब इसका कंपोनेंट क्या है, साइन है, लेकिन क्या है डायरेक्शन डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ f2 साइन ऑफ थीटा 2। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मींस नेगेटिव रूट ऑफ f3 साइन ऑफ थीटा 3। सिमिलरली फॉर f4 पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट, साइन ऑफ थीटा 4। दिस इज व्हाट समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन, दिस इज व्हाट समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन। Then we can find out the resultant easily. We can find out the value of summation of fx, summation of fy. Then we can easily find out the value of resultant. Then what is the resultant? Resultant is what? Fx square summation of plus fy square summation of plus 2f1 f2 summation of f1 summation of f2 का क्या कर देंगे हम दोस्तों, कैसे निकालते थे, अंडर रूट। दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट। हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। एनालिटिकल मेथड से कितनी भी फोर्सेस हो हम उसको एनालिटिकल मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर दिया। तो इट इज ए ब्यूटीफुल मेथड, ये क्या है, एक रामबाण है। कोई भी क्वेश्चन हो स्टैटिक्स का आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग दिस मेथड इजीली टू एनी प्रॉब्लम। नाउ हमें तो मैग्नीट्यूड मिल गया, बट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, डायरेक्शन कैसे मिलेगी। लेट अस से सपोज दिस इज थीटा r फ्रॉम x डायरेक्शन, थीटा r फ्रॉम x डायरेक्शन। आप कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन, वी नो द tan रूट tan थीटा r इज इक्वल टू व्हाट, दिस बाय दिस, समीशन ऑफ fy बाय समीशन ऑफ fx, फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन। तो यहां से हमें डायरेक्शन भी मिल गई कि इस रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन होगी, दिस इज थीटा r। तो इट इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल मेथड और इजी मेथड। बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे इजीली हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बहुत सारे मेथड देख भी रहे हैं और देखते भी रहेंगे, पर ये मेथड ऐसा मेथड है जो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड। तो भाई एनालिटिकल मेथड आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, एक और बंदा आया, कौन, लैमी। बोलता आई एम लैमी, मैंने कहा सो व्हाट कैन आई डू, बोलता मेरे पास भी लो है। मैंने कहा है तो दे दे। जब दुनिया आके लो दे के चली गई, तू क्यों पीछे हट रहा है, तू भी आगे दे दे लो। बोलता है तो सुनो, मैंने कहा सुना दे। तो अगला मेथड कौन सा आता है, लैमिस मेथड और लैमिस थ्योरम और लैमिस लॉ, मीन्स लैमिस थ्योरम और लैमिस लॉ। तो लैमिस थ्योरम क्या होती है, आइए आप जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट, our fifth method is Lami's law method. It is for what, कितनी फोर्सेस के लिए है, only for 3 forces. What, only for 3 forces, only for 3 forces. तो हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस के लिए मेथड कौन कौन सी है, देखो 2 फोर्सेस के लिए तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ हो गया। मैनी फोर्सेस के लिए
एनालिटिकल मेथड होगा वन ऑफ द बेस्ट मेथड एंड सेकंड इज व्हाट पोलिगन लॉ हो गया। और ये किसके लिए है? थ्री फोर्सेस के लिए, कि तीन ही फोर्सेस होनी चाहिए तब मेरा जो लॉ है वो वैलिड रहेगा। क्या बोलता है ये? इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड, क्या बोलता है आगे? कोप्लेनर, कोलिनियर, if a body consists of three inward and outward coplanar, collinear and concurrent forces, then the body is in इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें हो? इक्विलिब्रियम में होगी। क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। तो क्या बोलता है ये? इफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री इनवर्ड आउटवर्ड कोप्लेनर कोलिनियर, एक ही लाइन से पास हो, दिस इज नॉट अवर कंडीशन। कोप्लेनर हो, कंकरेंट हो। अभी तो हम कोलिनियर की बात नहीं कर रहे थे, कौन से फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं हम? कोप्लेनर और कोलिनियर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यदि कोई बॉडी तीन फोर्सेज, या तो उस पर इनवर्ड फोर्सेज हो या फिर आउटवर्ड फोर्सेज हो, तीन फोर्सेज जो कि कोप्लेनर हो, कंकरेंट हो, तो बॉडी किसमें होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। ये बोल देता है कौन? लैमिस। लैमिस क्या बोल देता है? तो आइए देखते हैं क्या है। दिस इज अवर बॉडी, ये क्या हमारी बॉडी है। इसके ऊपर क्या है? तीन फोर्सेज है। दिस इज वन फोर्स, दिस इज टू फोर्स एंड दिस इज थ्री फोर्स। लेट अस से दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। ये क्या होगी? तीन फोर्सेज होगी। डायरेक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस से दिस इज एंगल इज व्हाट? बीटा, दिस एंगल इज व्हाट? गामा एंड दिस एंगल इज व्हाट? अल्फा। दिस एंगल इज व्हाट? अल्फा। तो अब ये क्या बोलता है? क्या कि यदि एक बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेज लगी हुई हैं, आप या तो तीनों के तीनों आउटवर्ड हो या तीनों के तीनों क्या हो? इनवर्ड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो आउटवर्ड करके एक इनवर्ड कर दे, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा? भाई अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दूं तो इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा। कैसे रह पाएगा? तीनों की फोर्स रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो क्या है? बॉडी ऊपर ट्रांसलेट करना शुरू कर देगी। तो तीनों फोर्स या तो आउटवर्ड हो या तीनों फोर्स इनवर्ड हो। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? तो ये बोलता है कि वो बॉडी किसमें रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला? कह रहा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? यूज लैमिस इक्वेशन। यूज लैमिस इक्वेशन। क्या है लैमिस इक्वेशन? F1 डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन ऑफ गामा। दिस इज व्हाट? लैमिस इक्वेशन। ये बोलता है कि ये रिलेशन इट इज वैलिड, ये रिलेशन वैलिड रहेगा यदि क्या है? कोप्लेनर है बॉडी, फोर्सेस कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है और बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो ये रिलेशन क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। हमने कहा बहुत अच्छा भाई, हमने कहा बहुत अच्छा भाई। तो लैमिस थ्योरम में बहुत कुछ है सीखने का। लैमिस थ्योरम में बहुत कुछ है सीखने का। क्या? कई बुक्स में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है दोस्तों? कि बुक्स में लिखा जाता है कईयों में कि F1 जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? साइन ऑफ द एंगल ऑफ F1, साइन ऑफ द एंगल ऑफ अपोजिट ऑफ F1, साइन अल्फा। और F2 फोर्स होगी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एंगल ऑफ बीटा। इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के F3 की होगी प्रोपोर्शनल ऑफ साइन ऑफ वैल्यू ऑफ गामा। कई क्वेश्चंस में, कई बुक्स में इस तरह से दिया होता है, इस तरह से लिखा होता है। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? सपोज इनका सबका क्या है? एक ही क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जो प्रोपोर्शनल के बाद कांस्टेंट आएगा हमने एक मान लिया। लेट अस से के क्या हो जाएगा? F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू व्हाट? F3 बाय साइन ऑफ गामा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब क्या होगा भाई? अब दो कंडीशंस हो गए। क्या कंडीशंस है वो? बोलता है अल्फा बीटा गामा 180 डिग्री नहीं हो सकती। बोलता है अल्फा बीटा गामा 180 डिग्री नहीं हो सकते। ये भी मेरी कंडीशन है। मैंने कहा अगर कर दूं तो? कह रहा करके देख। मैंने कहा ओके का।
तो हमने क्या करा, दोनों की फोर्सेस से जैसे F1 दिस इज F2, हमने क्या कर दिया 180 डिग्री कर दिया, 180 डिग्री दोनों का एंगल कर दिया। यदि हमने इन दोनों का एंगल 180 डिग्री कर दिया तो ये आपस में तो काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ये F3 है, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि नहीं हो सकता, अल्फा बीटा गामा 180 से डिग्री हम बराबर नहीं कर सकते। मैंने कहा बहुत खूब है, ये भी तेरी बात सही है। फिर बोलता है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो बड़ा भी नहीं हो सकता 180 डिग्री से। मैंने कहा यार इसमें क्या बड़ी बात होगी, कहता करके देख लो। मैंने कहा कर देता हूं। मैंने क्या करा, बॉडी ली, बॉडी के ऊपर एंगल जो है अल्फा, दिस इज वन एंड फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कर दिया 180 से ज्यादा कर दिया। और तीसरी फोर्स कहां आएगी? F3। तीसरी फोर्स कहां आएगी? F3। भाई एंगल तो ज्यादा कर दिया, लेकिन अब जब मैं इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो देन आई फील डिफिकल्टी। दिस इज एंगल अल्फा, देन दिस इज एंगल बीटा, देन दिस इज एंगल गामा। तो डिफिकल्टी है मुझे एंगल्स लेने में। तो इसका मतलब ये भी बात तेरी सही है कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता, इसमें आएगी डिफिकल्टी सॉल्व करने में। तो उसने क्या बोल दिया कि ये मेरी कंडीशंस है भाई, अगर तुम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे तब ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। किस केस में? 3-4 सिस्टम, 3 फोर्सेस लग रही हो बॉडी के ऊपर, तब ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। उसकी कंडीशंस क्या? कोप्लेनर हो, कंकरेंट हो, इक्विलिब्रियम में हो, सेम प्लेन में हो, और क्या हो? आउटवर्ड हो या फिर इनवर्ड हो, या तो सारी आउटवर्ड हो या सारी इनवर्ड हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम अभी खत्म नहीं हुई, लेमिस थ्योरम अभी भी खत्म नहीं हुई। अनदर डेफिनेशन फॉर द लेमिस थ्योरम इज व्हाट? हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर लिखते हैं, if a body, second definition, if a body consists of 3 forces, what? 3 forces, if a body consists of 3 forces in a coplanar, concurrent, coplanar concurrent force system, then क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। क्या होगा? उनका फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। कैसे 0 होगा? भाई हमने अभी तो बात करी, यदि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोई एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? रिजल्टेंट 0 होगा, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। वी ऑलरेडी नो दैट द इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इट्स रिजल्टेंट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमें क्या लगा? क्या ठीक है भाई, ये बात तेरी सही है। इट इज ए ट्रू थिंग, इट इज ए ट्रू थिंग। नाउ व्हाट विल डू? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? एक और चीज जिसने बोली लेमिस ने, कहता कि अगर रिजल्टेंट 0 हो गया तो व्हाट? ये फोर्सेस क्या फॉर्म करेंगी? एक क्लोज पॉलीगन। अभी हमने पीछे बात की थी, जब रिजल्टेंट 0 हो तो क्या हो जाता है? क्लोज पॉलीगन फॉर्म हो जाता है। अभी बात की थी यानी पॉलीगन लॉ के अंदर ऑलरेडी बात की है। इसका मतलब क्या है? पॉलीगन कैसे हो सकता है? इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। मैंने कहा कैसे? कह रहा करके देखो। कहता फोर्स F1 रखो, दिस इज फोर्स F1, इसके डायरेक्शन सेम रखो, ठीक है? फोर्स F1 रखी, इसकी डायरेक्शन सेम रखो। अब क्या करो? यहां से हम क्या करते हैं? दूसरी फोर्स मिलाओ, दिस इज फोर्स व्हाट? F3। अब क्या करो? इसको तीसरी फोर्स से मिला दो, इसको तीसरी फोर्स से मिला दो, दिस इज व्हाट? F2। तो ये क्या हो गया? पॉलीगन ही हो गया। इट इज ए क्लोज पॉलीगन। किस तरह घूम रहा है? इस तरह घूम रहा है। मींस इट इज व्हाट? क्लॉकवाइज पॉलीगन। इट इज व्हाट? क्लॉकवाइज पॉलीगन। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाएगा? भाई पहले मैंने क्या लिया? F2 ले लिया। Sorry, this the direction of F2 is not this. The direction is F2 of this. Now it form a what?
क्लॉकवाइज पॉलीगन, क्लोज पॉलीगन। नाउ व्हाट इज वैल्यू, दिस इज F2, पहले क्या ले लिया, F2 ले लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन डू व्हाट, F3, F3, this is what, F2. Now from F3 we can do what, F1, this is what, F1. Now what is this, what will this form, this is a anti-clockwise closed polygon, closed polygon। तो क्या भाई, एक क्लोज पॉलीगन भी फॉर्म करेगा, क्लोज पॉलीगन भी फॉर्म करेगा। बहुत बार ये कंसेप्ट आपको यूज करेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स। तो इस बात को याद रखना, हमने पॉलीगन लॉ से बहुत सारी बातें सीखी, सॉरी लेमिज लॉ से बहुत सारी बातें सीखी। आई थिंक आपको इतनी सब बातों का लेमिज थ्योरम के बारे में नहीं पता होगा जितनी बातें आज हमने इस बोर्ड पर करी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था ऑल अबाउट किसके लिए, लेमिज थ्योरम के लिए। ये क्या था, लेमिज थ्योरम के लिए। अब हमने लॉज काफी पढ़ लिए हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक। क्या है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक, एंड जिसके ऊपर पूरी की पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस्ड करती है, जिसके ऊपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस्ड है, वो क्या है, द फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके ऊपर पूरी की पूरी मैकेनिक्स, चाहे वो स्टैटिक्स पार्ट हो चाहे डायनेमिक्स पार्ट हो, अगर आपको सही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता तो आप मैकेनिक्स का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, तो आप मैकेनिक्स का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, FBD। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, क्या बोलता फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम तो होता है कि कोई बॉडी है, उसको फ्री कर दो हर तरह से, उसको हर तरह से फ्री कर दो। किससे, एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस से। उसको हर तरह से फ्री कर दो और उसके ऊपर क्या दिखाओ, एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस दिखाओ। मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीडी, इफ अ बॉडी is free, if I is free, body is free from all contacts, जितने भी कॉन्टैक्ट हो रखे हैं बॉडी के ऊपर उसको सबसे फ्री कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, देन शो दी एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर जितनी भी एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस लग रही है उनको क्या कर दो, शो कर दो, उनको क्या कर दो, शो कर दो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलती है, बोलती है कि इफ ए बॉडी इज इन फ्री बॉडी फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट, जितने भी कॉन्टैक्ट है सबसे फ्री कर दो और उसके ऊपर एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस शो कर दो। व्हाट इज एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस? अब भाई एक्टिव फोर्स क्या होती है, एक्टिव फोर्स क्या होती है, एक्टिव फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस विच ट्राइज टू मूव द बॉडी। भाई वो फोर्सेस जो बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करेंगी वो होती है अपनी एक्टिव फोर्सेस। और रिएक्टिव क्या होती है, और क्या होती है, रिएक्टिव क्या होती है? रिएक्टिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो क्या करती है, इट इज एक्सटर्नल फोर्सेस ट्राइज टू स्टॉप द बॉडी। ये वो फोर्सेस होती है जो कोशिश करते हैं कि बॉडी किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में बॉडी रुकी रहे। दिस इज रिएक्टिव फोर्सेस। तो क्या करना है, बॉडी को ऑल कॉन्टैक्ट से फ्री कर देना है और उसके ऊपर जितनी भी एक्टिव फोर्सेस और रिएक्टिव फोर्सेस लग रही है वो हमें लगा लेनी है, वो हमें लगा देनी है। तो वो क्या होगा, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। हमने डेफिनेशन देख ली, हमने देख लिया फ्री बॉडी डायग्राम बोलते किसे है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फीलिंग जरूरी है यार, जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना तो फ्री बॉडी डायग्राम का मजा ही क्या, या नहीं? फीलिंग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है फीलिंग तो। अच्छा मुझे ना फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ ए सिंपल केस का। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल केस। इससे सिंपल केस दुनिया में हो नहीं सकता, इससे सिंपल केस दुनिया में हो नहीं सकता।
एक ब्लॉक है, दिस इज ए ब्लॉक, इसका मास m है। द ब्लॉक हैविंग ए मास m आर स्टैंडिंग ऑन व्हाट, आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, इट इज ऑन ग्राउंड, दिस इज व्हाट ग्राउंड, दिस इज व्हाट ब्लॉक। नाउ शो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, जस्ट टेक ए पोज, पोज लीजिए यहीं पर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। क्या करो, कोशिश करो बनाने की फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओ। मैं गारंटी देता हूं आप में से 90% बच्चे गलत बनाएंगे। 90% ऑफ द पीपल डूइंग द रॉन्ग फ्री बॉडी डायग्राम, राइटिंग द रॉन्ग फ्री बॉडी डायग्राम। आई एम वेरी श्योर, 90% श्योर। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो ऑल अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम। आप गलत बनाओगे, फोर्सेस को बैलेंस करना आपको आता ही नहीं है, मुझे पता है इस बात। ट्राई कर लो, यही पोस्ट कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इस बात को, क्या आपने सही बनाया था या गलत बनाया था। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना प्लीज। ओके, नाउ इससे पहले एक और बात करते हैं। आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है? भाई आईईएस में, आईईएस के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम भी पूछा जाता है। आईएएस वाले क्या बोलते हैं भाई हमें लग गया पता तुम्हारे लेवल का, तुमसे प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम तो ढंग से बनता नहीं है, तो तुम अगली प्रॉब्लम तो ऑलरेडी ही गलत करोगे। जब तुम्हारा पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत हो गया, तो ऐसा करो बेटा, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाओ, हम क्वेश्चन पेपर में वही दे देंगे। रिसेंटली 3-4 years they will ask only but the free body diagram in the exam of ESC। यदि ESC की बात करें तो यही एग्जाम में आता है और गेट में बहुत बार फ्री बॉडी डायग्राम पूछा जा चुका है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे की चीजें तब समझ पाएंगे जब हमें पता होगा फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, कैसे इसको शो करते हैं। तो बताइए मुझे, मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम को फुल्ली आपको बताने जा रहा हूं। शायद इतना जितना मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताऊंगा किसी बुक के अंदर भी नहीं बताया गया होगा। बुक के अंदर भी क्लियरली नहीं मेंशन किया होता है अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ वी विल केयरफुली सी देयर व्हाट विल हैपन। Now first step is what? Free from all contacts. So here how many bodies there? There are two bodies. One is what? Block. Second is what? Ground. So this is our what? Ground. Second body. This is what? Our block. First body. This is what? Our block. Block having some mass m. So there is a at center of gravity of this block there is a force called W. Weight of this block डाउनवर्ड। वेट किस पे लगेगा? दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगता है वेट। तो वेट किसके ऊपर लगता है? अरे मूर्खो, वेट लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। वेट लगता है किसपे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। टोटल मास ऑफ द बॉडी लगता है किसपे? सेंटर ऑफ मास के ऊपर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब हम चैप्टर करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे अलग अलग चीजें हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। तो चलिए, आप क्या हुआ? दिस इज अवर बॉडी 1, दिस इज अवर बॉडी 2, दिस इज अवर बॉडी 2। नाउ व्हाट विल हैपन? ये क्या है? ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है W, इसके ऊपर ब्लॉक फोर्स लगा रहा है W। ठीक है, क्या ये ग्राउंड नीचे की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा है। मीन्स ये ग्राउंड क्या कर रहा है? इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहा है, कितनी से N फोर्स लगा रहा है, अपोजिट से N। अब ये क्या है? फोर्स है, इसकी अपोजिट फोर्स है किसके ऊपर लग रही होगी? दोबारा ग्राउंड के ऊपर। अब क्या हो रहा है? ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना ही ग्राउंड नीचे जा रहा है, तो इसकी अपोजिट फोर्स कहां लग रही होगी? सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। दिस इज इट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज N। नाउ दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या हो गया हमारा? फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये वेट है भाई, इसके अपोजिट होगी, इस वेट का भी तो कुछ अपोजिट होगा, इस वेट का भी तो कुछ अपोजिट होगा। वो क्या होगा? यहां पे लग जाएगा, क्या हो जाएगा? W। क्या हो जाएगा? W। नाउ दिस इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? गलत, ये W यहां पे नहीं लगता, ये W यहां पर नहीं लगता, W तो यहां पर नहीं लगता। तो सर अभी बैलेंस तो हुई नहीं, ये N से बैलेंस होगा, W किससे बैलेंस होगा मुझे ये बताइए। मैंने कहा भाई मूर्खो, ये W पता है कहां लगेगा? व्हाट? ये ग्राउंड क्या है हमारा? ये कोई बंदा थोड़ी है यहां से नीचे से इस तरह से टक टक कर रहा होगा, नहीं ये बंदा थोड़ी है। दिस इज व्हाट? आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। और ये क्या है? अर्थ का सेंटर। तो ये W कहां लगेगा? अर्थ के सेंटर पे लगेगा अपवर्ड।
ये क्या लगेगा, अर्थ के सेंटर पे लगेगा अपवर्ड, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस इज ए फुल्ली व्हाट, fully free body diagram of this. This is FBD. The actual FBD is this. What is this? Is the actual FBD. No book can explain you like this FBD. किसी बुक में आपको मेंशन नहीं होगा इस तरह का FBD। क्योंकि हम भाई स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी किसकी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इस ब्लॉक की, किसकी, इस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं। तो हम इस पार्ट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस पार्ट की हमें जरूरत ही नहीं है। हम अर्थ की थोड़ी स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, बॉडी की। बॉडी इज व्हाट, दिस ब्लॉक। तो हम इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं सिर्फ उसी को दिखाते हैं। बहुत सारी बुक्स में सिर्फ ये ब्लॉक दिखाया गया होगा, अर्थ कहां पर टोटल कैसे बैलेंस होगा, ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम कहीं पे नहीं दिखाया गया होगा। दिस इज द एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम, पर फॉर आवर कन्वीनियंट वी नेग्लेक्ट दिस। हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ ब्लॉक को देखते हैं। समझ गए आप लोग कैसे होता है फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ एक और चीज आप बना के देखिए, अब आपको आ गया होगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होता है। दिस इज अ ग्राउंड, देयर इज अ ब्लॉक, दिस इज अनदर ब्लॉक जिसके ऊपर रखा हुआ, दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज बी ब्लॉक। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए फटाफट, टाइम लग रहा आपको, फटाफट बनाओ। 2 मिनट से पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो कैसे बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फर्स्ट स्टेप क्या है, चलो मैं बताता हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इसको देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑल फोर्सेस। दिस इज अ ग्राउंड, दिस इज अ थर्ड बॉडी, दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ सेकेंड बॉडी। अच्छा मुझे एक बात बताओ मुझे, कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो किस तरह की फोर्स लगाती है। इफ दिस पेन इज फोर्सिंग मी, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ही इज गेटिंग। एवरी बॉडी ट्राई टू फोर्स द अनदर बॉडी ओनली नॉर्मल फोर्स। यदि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगा रही है। क्या लगती है, नॉर्मल फोर्सेस लगती है। जैसे कि हमने पिछले केस में किया था, ग्राउंड क्या कर रहा है, ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक क्या कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो, तो फोर्स कौन सी लगती है, नॉर्मल फोर्सेस। तो हमने क्या कर लिया, फ्री कर लिया। दिस इज व्हाट आवर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए। ये अपना ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक सी है। नाउ करते हैं शुरू। ब्लॉक का क्या होगा, कुछ मास होगा, इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान ले। तो इसका वेट क्या हो गया, W1, इसका वेट क्या हो गया, W2, इसका वेट क्या हो गया, W2 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर इन दोनों का वेट ऐड हो जाएगा, W1 प्लस W2। नहीं, अलग अलग सेपरेट करना है W2। तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर एक, देख ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा। वो कौन सी होती है, इट इज अ नॉर्मल फोर्स। जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है वो क्या है, एक नॉर्मल फोर्स है फ्रेंड्स, एक नॉर्मल फोर्स है। क्यों लगा रही है भाई, ये जब इसके ऊपर रखा हुआ है तो एक इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स ये लगा रहा है, मास m1 लग रहा है, और ये ब्लॉक क्या है, यहीं पर स्टे है। मीन्स देयर इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस मीन्स कोई फोर्स होगी जिसको अपोजिट बैलेंस कर रही होगी। व्हाट इज दैट फोर्स, दिस इज अ फोर्स, बट कौन सी फोर्स है वो फोर्स कौन सी है दोस्तों, m1। सो फोर्स कौन सी है, n1। तो फोर्स कौन सी है, n1। अब ना यही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे लग रही होगी, डाउनवर्ड साइड पे लग रही होगी, इसके ऊपर लग रही होगी कितनी, n1। क्यों लग रही होगी भाई, ये बॉडी इसके ऊपर भी कोई फोर्स लगा रही होगी, ये ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर भी तो अपोजिट फोर्स को लगा रहा होगा। n1 का अपोजिट क्या होगा, n1 डाउनवर्ड, तभी तो काउंटर बैलेंस हो पाएगा। अब क्या लग रहा है यहाँ पर, W2 डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका अपोजिट क्या लगेगा, इसके अपोजिट क्या लगेगा, कौन लगाएगा, ग्राउंड लगाएगा। ग्राउंड नीचे थोड़ी सी है, क्या लगाएगा, n2 लगाएगा। क्या लगाएगा, n2 लगाएगा। अब क्या होगा, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएगा, लो ग्राउंड के ऊपर सेम इक्वल एंड अपोजिट, व्हाट इज आवर थर्ड, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम अब फोर्स लगाएगा m2 इन डाउनवर्ड, क्या लगाएगा, m2 इन डाउनवर्ड। नाउ व्हाट इज काउंटर बैलेंस, ये W1 और W2 फोर्सेस काउंटर बैलेंस नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, काउंटर बैलेंस नहीं हुई है। बाकी सारी फोर्सेस क्या होगी, बैलेंस होगी। दिस इज व्हाट आवर अर्थ। ये कहां पे लगेंगी, सेंटर ऑफ अर्थ। कितने लगेंगे, अपवर्ड लगेंगी, कितने लगेंगी, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। दिस इज द राइट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक्स, राइट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। अगर आपको समझ आ गया है तो आपसे हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
अगर आपको इसमें डिफिकल्टी है अभी भी तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि मैं आपको और एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर सकूं कि फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनता है। वैसे तो इतना क्लियरली मैंने बताया है जितना क्लियरली कहीं पे भी नहीं बताया जाता। फुल डिटेल में आपको फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बता दिया है कैसे बनता है, लेकिन फॉर आवर पर्पज भी क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। हमें क्या मतलब है, ब्लॉक से मतलब है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व हम करके देखेंगे। अभी तो जस्ट फोर्सेस बताइए मैंने कि कैसे कैसे फोर्सेस ब्लॉक्स के ऊपर लगेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर से शुरू करेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर और भी बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हो क्लियरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फ्रॉम बेसिक से, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पर। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉय द वीडियो।